Hello students, how are you? Hope you're fine, and I know you must be doing very well at home, taking care of yourself, your books, your studies and everything, and all people around being aware, right? तो अब पिछली बार I think I had taught you the diagram of the digestive system, and I'm sure you must have drawn it properly, understood it very well, right? It is here. So just for a revision, I kept it here so that you can just review it. Plus, I would just tell you about a little bit more things which are there in the system, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसी डायग्राम से आपको बार बार दूसरा बनाना ना पड़े. उसके बाद I would do in this lecture, what I would be doing is I would teach you about the things which are remaining here. See, this is complete as per your school exams, and in your school exams or your NCERT, even if you don't like mention all these duodenum, jejunum, ileum, you can directly mention this as the small intestine. Here for this whole you can write large intestine. You don't need to specify cecum, colon and rectum. But there are certain points, certain words which are used, sphincter, such words like that. So I'll just tell you where they are, what they are, so that you can relate with this diagram and continue further. Then what I'll do is I would be drawing this part and explaining it, what's there in the buccal cavity, what's there in the esophagus, then the stomach, all the glands related with it. But that time the whole diagram would make it a little messy, right? So थोड़ा सा इसको मैं आपको और explain कर देती हूँ. See, last time I had said mouth, then there is a buccal cavity. उसके बाद जैसे pharynx है, यहाँ पे होगा windpipe, तो इनके ऊपर का common area जो होता है वो है pharynx, और फिर food pipe, that is the esophagus. अब जब esophagus यहाँ पे, ये जो मैंने बनाया छोटा सा यहाँ पे और यहाँ पे, the food should remain inside the stomach for some time so that it is properly digested. So the entry of the food and the exit of the food is controlled by certain muscular ring-like structures which are called sphincters. I'll make them in the green color so you'll understand. Here, see? Here and here. Muscular ring-like structures like this. फॉर एग्जाम्पल आप इसको रिलेट कर सकते हो, जो बलून होता है आप उसको जब फुलाते हो तो आगे कंस्ट्रिक्शन टाइप आता है, एक रिंग टाइप, एंड देन यू लेट द एयर कम आउट, इट कम्स स्लोली स्लोली. उसी टाइप का एक कंस्ट्रिक्शन होता है बोथ द साइड ऑफ द स्टमक. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर. जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां मीट करते हैं, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर. पैंक्रियाज से जो डक्ट निकल रही है और जो कॉमन बाइल डक्ट आके मिल रही है, वहां पे भी देयर इज अ स्फिंक्टर हियर ऑल्सो, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, बट दैट इज इन योर 11th क्लास. बट यू शुड नो हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड sphincter. So as I said, it is a muscular ring like structure or a constriction of muscular constriction of muscular tissue which holds or regulates the entry and exit of substances at a particular place. ठीक है, तो जैसे ये स्टमक वाला पहले यहाँ पे है, this is the cardiac sphincter. I'll tell about it later on when I draw the stomach. But here इससे relate better कर सकते हैं ना, यहाँ पे food यहाँ से आता है और यहाँ जाता है. इट इज रेगुलेटेड बाय द कार्डियक स्फिंक्टर. यहाँ पे रुक जाए, सीधा इंटेस्टाइन से पास ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं. अगेन आई मेक यू राइट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट पर्टिकुलरली. लेकिन व्हेन द फूड गोज लाइक दिस, एंड हियर देयर इज अ स्फिंक्टर कॉल्ड इलियोसेकल. अब रिमेंबर इलियो वर्ड कम्स फ्रॉम इलियम. Ceco, what is it come from? Cecum, ileocecal sphincter, right, which is between the ileum and the cecum. It also holds the food at a particular place. Even here, from the pancreas comes the pancreatic duct, from the gallbladder comes the common bile duct,
and like bile duct and pancreatic duct meet, and then they open up into the duodenum. There is a sphincter called the sphincter of Oddi, but that we'll talk about later. These you should know. This word has been used in NCERT, so you should know what is it, right? A muscular ring-like constriction which holds food at a particular place. ठीक है, तो ये वाला चीज एक आपको इसमें समझनी है. उसके बाद one thing like you should know again from here is this would be the tongue here. ठीक है, और ये जो ईसोफेगस है, अगर हम ऐसे खड़े होते तो ईसोफेगस के जस्ट आगे आपका विंड पाइप होगा, ट्रैकिया होगा. ठीक है, उसके ऊपर अब ये यहां फेस कर रहा है तो यहां पे विंड पाइप होगा ना. ठीक है, सो देन यू इमेजिन ऐसे होता का तो कैसे होगा. उनके ऊपर का कॉमन स्पेस जो होगा उसको फेरिंग्स बोलते हैं. और इसी फेरिंग्स के ये फेरिंग्स जो है, अगर आप इसको हम ऐसे हाईलाइट करें दिस पार्ट लाइक दिस, अगर हम इसको ऐसे करके देखें, ठीक है, हियर आई जस्ट रब इट आउट दिस वे. यहां देखें तो वन part of pharynx is here above the esophagus, other part of pharynx will be above the windpipe, and one from the nasal cavity. यहाँ पे जो nasal cavity की naves है ना, यहाँ पे एक structure होता है like this, जो nose से nasal cavity के नीचे होता है. ठीक है, तो इस pharynx के इसीलिए इसी को हम portions को divide करके बोलते हैं. इसके ऊपर जो है वो oropharynx हो जाता है, nasopharynx and laryngopharynx. वो मैं आपको बताऊंगी. laryngo word comes from larynx, that is your voice box. ठीक है, तो इसी pharynx के 3 parts है, because nothing this. इस portion को बोल दिया laryngo, इसको बोल दिया oro, और यहाँ जो part होगा वो होगा nasopharynx. ठीक है, तो अगर ये words आते रहे तो you don't be very confused. ठीक है, तो ये सब ये clear हो गया आपको. Okay, now coming down to the लार्ज इंटेस्टाइन. ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पोर्शन सीकम है. ये पूरा मैंने आपको बताया यहां तक कोलन है. हियर इट वुड बी द रेक्टम, है ना. दिस वुड बी द रेक्टम, दिस वन. दिस पोर्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोलन. लाइक इस कोलन मेजरली कई बार आप देखोगे द वर्ड कोलन इज यूज्ड फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन. व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम पार्ट ही वो है. ठीक है, अब इस कोलन के इसके अगर कहें तो यहां से शुरू होता है, तो दिस इज सी फूड इज कमिंग लाइक दिस एंड इट इज गोइंग लाइक दिस, राइट. सो इट इज असेंडिंग. दिस पार्ट इज कॉल्ड द असेंडिंग कोलन. दिस पार्ट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स कोलन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग कोलन. दिस वन हियर is called the sigmoid colon. I'll tell you again when I'm talking about large intestine in detail, but this is the sigmoid colon. So colon again is divided into 4 parts. So I kept this diagram here so that you could relate these words with this diagram, and then in the next part of a few minutes, what I'll do is I'll be drawing these separately, and you will we'll talk about the functions and the secretions and all about it, right? So this is clear to you? Okay. So hope this is getting in your minds. I just kept it for a review. ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ रहा है. Just wait for a few minutes so that you can just draw it. ठीक है? Draw it and review. अब जब भी कुछ भी डाउट आएगा, I will talk about it when we are talking about separate portions. ठीक है? ओके, तो अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया. वी हैव ऑलरेडी सीन द लिटिल details of the digestive system and drawn the diagram of the digestive system. Now we need to study about the small portions, like all the detailings of all the separate or individual parts of the digestive system. So right now I would take up, starting from the mouth, we would start discussing the points about the digestive system and the details of the digestive system.
right now we would be covering the portion which you need to know for your board exams or your school exams. The NCERT based section we will be covering mostly in this lecture, right? So the first part of the system or the alimentary canal was the mouth, and obviously this is the point of ingestion of food. Okay. Second comes the buccal cavity. It is also termed as the oral cavity. A cavity, the space behind the mouth, जो माउथ पॉइंट ऑफ इंजेशन है, और अगर कहीं पे दोनों ऑप्शन आ जाए, जैसे पॉइंट ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स वेयर, तो आप माउथ नहीं लिखिए, माउथ तो पॉइंट ऑफ इंजेशन है, सॉरी, उसके बाद जो बकल कैविटी है या ओरल कैविटी है, दैट इज द एक्चुअल पॉइंट वेयर डाइजेशन ऑफ फूड, physical and chemical, both starts, right? So if mouth and buccal cavity both are given, you have to write the buccal cavity. If only mouth is given, you can say that, because buccal cavity हम generally word use नहीं करते, mouth ही कर देते हैं, ठीक है? तो buccal cavity is the space behind the point of ingestion, और इसका upper part अगर आप देखते हैं तो just you touch your tongue above, tongue करोगे तो there are some ridges also and you'll feel a hard surface. That portion is called hard palate. और उसके पीछे, hard palate के just पीछे you will find a little softer area, that is the soft palate. और वहां पे आपके nasal जो nerves है ना, nostrils, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं, वो वहां पे होते हैं सॉफ्ट पैलेट में, लेकिन ये जो हार्ड पैलेट है जहाँ पे आप टंग टच कर सकते हो, उस पे जो थोड़े से रिजेस लगते हैं, थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे कुछ पोर्शंस हैं सेपरेट सेपरेट, ऐसा कुछ हार्ड लगता है आपको. व्हेन यू रब योर टंग अप यू विल फील दैट दोज आर कॉल्ड रगे, एंड दे आर देयर. वो रिजेस जो होते हैं ना, जो आपको फील होता है, उनको रगे बोलते हैं, और दे आर देयर टू होल्ड द फूड इन प्लेस फॉर सम टाइम, थोड़ा सा बिल्कुल स्लिप ना हो जाए इसीलिए, ठीक है? तो अपर पार्ट हार्ड पैलेट है. द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी हैज अ मस्क्यूलर टंग, और टंग के ऊपर आप जानते हो देयर आर टेस्ट बड्स which can feel the taste, or which is salty, sour, bitter and sweet, right? So those are the taste buds present there. It is a muscular structure. It also helps in speaking. अगर आप टंग होल्ड करके स्पीक करना चाहोगे तो you will only be producing sound. आप words को formulate नहीं कर पाएंगे, right? So tongue helps you in formulating speech also. उसके बाद in the buccal cavity there are 3 pairs of salivary glands. Which are they? Salivary glands. कितने होते हैं? 3 pairs. तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 होंगे. बेसिकली अगर अपन इनके नाम ले तो 3 pairs होते हैं. एक तो होता है पैरोटिड, सेकेंड है सबलिंगुअल, एंड थर्ड है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर. दोनों मैंडिबल्स आपके जॉ के पीछे साइड में होता है, तो दैट इज मैंडिबुलर. तो ये तीनों के नाम है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ. पैरोटिड ग्लैंड का एक होता है कि ये जो जस्ट आपका ईयर लोब जहां पे खत्म होता है, इंटरनल साइड वहां पे लोकेटेड होता है, और एक वायरल डिजीज है जो इफेक्ट करती है आपके इस एरिया को, इस ग्लैंड को, वो है मम्स. तब स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है ना? तो ये तीनों ग्लैंड्स है, एंड दे कलेक्टिवली, ऑल 3 कलेक्टिवली सिक्रीट अ सिक्रीशन कॉल्ड सलाइवा. आपको पता ही है, आपके माउथ में आपको फील होता है दैट सलाइवा is secreted by the salivary glands, and saliva is that secretion which helps in chemical digestion of food
बिकॉज इट कंटेन्स सर्टन एंजाइम्स. ठीक है, ये तीनों सलाइवा सिक्रीट करते हैं. इसके साथ साथ दिस इज 1 2 is this, 3 is this, 4 you can say there are टीथ होते हैं ना, आपकी बकल कैविटी में टीथ भी होते हैं. और टीथ आप जानते हो 4 टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? इंसिसर्स, then there are canines, then there are premolars, and then there are molars. ये 4 टाइप के होते हैं. Incisors for biting into food, canines for cutting and tearing, premolars and molars for grinding. ये आप पढ़ चुके हो. तो ये 4 टाइप के टीथ होते हैं अपनी बकल कैविटी में. और ये फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड करते हैं, फूड को चू करते हैं, तो उसका फिजिकल फॉर्म को छोटा कर देते हैं. राइट, सो फिजिकल डाइजेशन ऑल्सो स्टार्ट्स इन द बकल कैविटी एंड द केमिकल डाइजेशन बिकॉज ऑफ सलाइवा. विल टॉक व्हाट आर द थिंग्स इन द सलाइवा, वो अपन अभी बात करेंगे. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बकल कैविटी. अब फूड की बात करें तो 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, सेकंड प्रोटीन होता है और थर्ड फैट होता है. 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर दीज. वी हैव टॉक्ड अबाउट देम, नो, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं, बट दे डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन. दे कैन बी अब्सॉर्ब्ड एज इट इज, बट इन तीनों का डाइजेशन होना बहुत जरूरी है. तो ये 3 कंपोनेंट्स मेजरली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. 3 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड फैट्स. अपन इसी सीक्वेंस में करेंगे ना, तो आपको ये भी याद रहेगा. पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, फिर प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं और फिर फैट्स डाइजेस्ट होते हैं इन द सिस्टम. सो यू रिमेंबर दैट प्रॉपरली. सो दिस इज क्लियर. मैं इसको मिटाऊं एंड देन आई एम राइटिंग अबाउट सलाइवा. ओके, सो फिजिकल डाइजेशन तो टीथ करते हैं. ठीक है ना, उसको टुकड़े में तोड़ के चू कर देते हैं. और एक प्रोसेस होता है मैस्टिकेशन, जिसमें भी टंग हेल्प करता है. मैस्टिकेशन, मिक्सिंग फूड विद सलाइवा. ये भी कौन कर देता है? ये भी करता है टीथ एंड टंग. दे हेल्प टू डू दिस. After this, when saliva mixes with the food, what does it do? Physical तो वो टूट गया है, पल्प बन रहा है, टूट गया है. लेकिन सलाइवा क्या करता है? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होती है, सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज which is present and it converts starch into maltose. So starch is what? Starch is, so digestion of starch is a carbohydrate. Digestion of carbohydrates starts here. अब आप सोचोगे कि ये क्या स्टार्च और माल्टोज क्या होता है? Actually, what is starch? Starch means glucose plus glucose plus glucose plus glucose. हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? स्टार्च. और अब सडनली फूड तो थोड़ी देर ही रहता है बकल कैविटी में, तो इतनी देर में उसका पूरा डाइजेशन होना मुश्किल है टू ग्लूकोज, है ना. सिंपल, आप जानो बहुत सारी चीजें साथ में जुड़ी हुई है. मान लो हजारों बीड्स साथ में जुड़े हुए एक माला में, तो सडनली टू कम टू वन बीड इट बिकम्स डिफिकल्ट, नो. तो पहले स्टार्च इज ब्रोकन डाउन टू 2 बीड्स. जैसे मान लो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, एन नंबर प्लस ग्लूकोज, ऐसे करके चलो, करते ही जाओ तो इट विल फॉर्म स्टार्च. फर्स्ट इट इज ब्रोकन. व्हाट इज माल्टोज? इट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. तो पहले थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, 2 बीड्स जुड़ के रह जाए, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज
दूसरा भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज वैसे सेपरेट होता है, और फिर फर्दर वो पैनक्रियाटिक जूस की वजह से ग्लूकोज में टूट जाता है। जैसे एक बीड अगर ग्लूकोज है तो बहुत सारी बीड्स ऐसे करके स्टार्च बनाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस बिकम स्टार्च। तो पहले इट इज ब्रोकन डाउन लाइक दिस इनटू माल्टोज, और फिर पैंक्रियास में क्या होगा, ये पूरा एक एक ग्लूकोज में बदल जाएगा, ठीक है। सो माल्टोज इज दिस, समझ में आ रहा है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सो हियर फूड इज कन्वर्ट पार्शियली, कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड in the buccal cavity. So digestion starts where? In the buccal cavity. Digestion of food in the chemical form and physical, both starts in the buccal cavity. Physical तो teeth ने किया, chemical किसने किया? Chemical was done by the salivary amylase. ठीक है? Okay. So this is about buccal cavity. Okay. From the buccal cavity, the food moves into the esophagus. Esophagus को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। Esophagus को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। फूड पाइप में there is no digestion, only muscular movements up and down which pushes food down, called peristaltic movement. Peristaltic movement मतलब ये जो इसोफेगस होता है ना, हाईली मस्क्यूलर वॉल से बना होता है, हाईली मस्क्यूलर, और वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। उस मूवमेंट को अपन कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और उस प्रोसेस को यू कैन ऑल्सो से पेरिस्टालसिस। वो प्रोसेस क्या है? पेरिस्टालसिस, प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टालसिस। तो इसोफेगस में क्या होता है? सिर्फ पेरिस्टालसिस होता है, और जिसकी वजह से फूड पुश डाउन हो जाता है टू द स्टमक। इज दैट मच क्लियर? सो नो डाइजेशन अकर्स इन द फूड पाइप, ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। वैसे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माउथ से स्टमक तक फूड जा रहा है काफी सब्सटेंशियली, दैट इज नोटिस, सो इट इज पुश डाउन टू द स्टमक, ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। सो दैट मच इज क्लियर? ओके, नाउ फ्रॉम द esophagus, food moves to the stomach, and as I had told you, the stomach is a J-shaped structure like this, a J-shaped structure like this. This is J-shaped, दिख रहा है? J-shaped structure, stomach. यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है। इस वाले स्फिंक्टर को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। मैंने आपको बताया था कि स्फिंक्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। ये नहीं है एनसीईआरटी में, बट स्टिल यू शुड नो दिस मच। स्फिंक्टर, और इस स्टमक में सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। समझ में आ रहा है? एंड ये तीन चीजें कंटेन करता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स थ्री थिंग्स। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से स्टमक में पीएच हो जाता है समवेयर अराउंड 1 से 2 तक। सेकेंड होता है म्यूकस, और थर्ड होता है एक एंजाइम विच इज कॉल्ड पेप्सिन। ठीक है, वन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। HCl की वजह से स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस होता है इट इज हाईली एसिडिक। ठीक है, इतना एसिडिक होता है
कि अगर इसमें एक जिंक का पीस डाल दिया जाए ना तो वो पिघल जाए। तो हमारी स्टमक की वॉल्स इससे कैसे बचेंगी? वो आ जाता है, वहां रोल आ जाता है म्यूकस का। म्यूकस, व्हाट डज म्यूकस डू? म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल्स फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। तो वरना तो यही HCl इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि स्टमक की वॉल को ही करा दे, बट नहीं, बिकॉज ऑफ म्यूकस। स्टमक पूरा कोटेड होता है म्यूकस से। वैसे म्यूकस ऑल्सो इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी में कई जगह होता है। सो HCl से वो बचा लेता है, दैट इज रोल ऑफ म्यूकस। तो HCl का क्या रोल होगा? एक तो HCl का रोल होता है, आप देख रहे हो pH 1 to 2, तो एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो फूड को कैसा बना देता है? एसिडिक। यहाँ पे कैसा मीडियम होता है? मीडियम मतलब यहाँ पे जो भी होगा कैसा होगा? एसिडिक कंडीशन होगा बिकॉज ऑफ HCl। तो एक तो वो एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। दूसरा, वो कोई भी अगर बैक्टीरिया इसोफेगस या माउथ से बाय द वे आ गया इन द स्टमक, इट विल गेट किल्ड बाय द HCl। सो HCl हैज टू रोल्स: killing the harmful microorganisms if they have entered. Second is providing an acidic medium in the stomach. Why does it need to provide an acidic medium? It needs to provide acidic medium so that this enzyme pepsin works properly. तो HCl इस pepsin को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट। वन रोल हो गया HCl का, किलिंग बैक्टीरिया। सेकेंड रोल हो गया व्हाट? Providing an acidic medium to activate the enzyme pepsin. अब इसको एक्टिवेट करने की जरूरत क्यों होगी? इसको एक्टिवेट करने की जरूरत इसीलिए होती है बिकॉज ये स्टमक में ऑल द टाइम अगर ये एक्टिव फॉर्म में होती है कि चलो आज डाइजेशन करूं, तो ऑल द टाइम वी आर नॉट हैविंग फूड, राइट? सो इट नीड्स टू बी रिलैक्स। तो ये अपने एक प्रीकर्सर, अपने इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन के फॉर्म में होती है इन द स्टमक। जैसे HCl सिक्रीट होगा ना, उसके बाद ये एक्टिवेट होके पेप्सिन में बदलती है, फ्रॉम पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। एंड पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन कैन कन्वर्ट, digests or converts, digests proteins. See, pepsin, IN है पीछे, प्रोटीन के पीछे भी IN है, तो याद रखो पेप्सिन digests protein and gives to peptones, peptides, smaller units, peptones। अब आप कहोगे ये क्या है? तो जैसे मैंने ग्लूकोज का आपको बताया था ना, n number of glucose collectively form starch and we take food in the form of starch, n number of amino acids form proteins। तो सबसे बेसिक उसका यूनिट क्या हो जाएगा? अमाइनो एसिड। लेकिन अमाइनो एसिड तक आते आते थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो पहले छोटे यूनिट्स में ब्रेक होता है, पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इट विल बी कंप्लीटली डाइजेस्टेड टू अमाइनो एसिड्स जो अब्सॉर्ब होंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया पेप्टाइड्स एंड peptones. Hope that much is clear to you. Okay, so we have already studied what is role of salivary amylase, digesting carbohydrates in the buccal cavity. Second, digestion in the stomach. Pepsin converts or digests proteins. HCl का रोल अपन ने देख लिया, क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में, kills microorganisms and provides an acidic medium, write it fully, to activate the enzyme pepsin which digests proteins। ठीक है, और पेप्सिन का रोल तो ऑब्वियसली हो गया डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा रोल है killing any harmful microorganisms if they have entered along with food in our alimentary canal। ठीक है, तो ये हो गया। और स्टमक में फूड 3-4 घंटों तक रहता है, अच्छी तरह से चर्न होता रहता है, पल्प टाइप फॉर्म होता है, उसके बाद ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट स्टमक। तो आपकी स्कूल एग्जाम्स में आपको ये तीनों रोल पूछ सकते हैं, ऑफ द एंजाइम, ऑफ द एसिड एंड ऑफ म्यूकस।
ठीक है, so you should know all. Okay, और now I'm using the word enzyme again and again ना, तो अगर आपको confusion है what is enzyme, तो enzyme को enzymes के लिए word use होता है it is a biocatalyst. क्या है? Biocatalyst. Catalyst आप जानते हो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, any chemical or any substance which speeds up the rate of reaction without itself taking part in the reaction or getting changed. That is a enzyme. और ये क्योंकि लिविंग सिस्टम में है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट. वो अपनी डाइजेशन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, अपनी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं. अदरवाइज आवर डाइजेस्टिव प्रोसेस वुड हैव टेकन क्वाइट लॉन्ग. ठीक है ना? But because of these enzymes, it is speeded up. So our food gets digested around in 3-4 hours in the stomach. उसके बाद in the intestine. ठीक है? So they help. This is pylori. It's been done. Okay, so this is clear in the stomach. Okay. So should I rub this now? Okay. After the stomach, the part which comes is the small intestine. और मैंने आपको कहा था आपकी स्कूल एग्जाम्स में आपको इलियम, जेजुनम, डिओडेनम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन ने पढ़ा था इट इज डिओडेनम प्रॉक्सिमल पार्ट, पहला पार्ट, देन जेजुनम एंड देन इट इज इलियम. और इलियम इज दैट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. ये भी क्वेश्चन पूछ देंगे. ठीक है, तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन लिख सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड सेपरेटली. तो पहला जो पार्ट था आपने देखा दिस वाज द स्टमक एंडिंग एंड इट वाज लाइक दिस. ठीक है ना? इस टाइप का एक डिओडेनम है एंड इट इज सी दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेटर सी. सो दे समटाइम्स से डिओडेनम इज शेप्ड लाइक द लेटर C. So it is C-shaped small tube. मैंने इसको बड़ा बनाया, छोटा सा पोर्शन होता है of the small intestine, which then leads to the jejunum and lastly to the ileum, like this. ठीक है? This is the small intestine. And small intestine को हम small intestine इसलिए नहीं बोलते कि वो छोटी है साइज में. It is a very long tube, around 6.5 meters in. Excuse me. In adult human being, and excuse me, just a little. Need a little bit of water. Okay. Sorry. हाँ. तो what I was saying is. Duodenum is a C-shaped structure and the small intestine is a very long tube-like tube which is longer in herbivorous animals. Herbivorous में क्योंकि सेल्यूलोज होता है, राइट? सेल्यूलोज डाइजेशन में टाइम लेता है और ये जो डाइजेशन में टाइम लगता है उसके लिए जो हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है. लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर तो बड़ा होता है बट इट इज शॉर्टर कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है? सो दिस इज अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो अब इसमें अपन देखते हैं. आई जस्ट रब दिस आउट. नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज द डिओडेनम प्रॉक्सिमल पार्ट. इसमें अपन को देखना पड़ेगा अबाउट द लिवर. ओके, I had drawn a liver like this. Remember? This was the liver. And liver, I said, is bilobe, something like this. कई बार आपको ऐसा दिखेगा. Liver. और liver के नीचे मैंने एक ऐसा small pouch-like structure बनाया था, which was the gallbladder. Like this. ठीक है? ये जो गॉल ब्लैडर से ट्यूब आती है इतना ये यहां पे आके मिलती है इससे, लाइक दिस एंड दिस. आई हैव ड्रॉन इट. इट ओपन्स अप हियर एंड दिस देन
is meeting the pancreas. ये कौन सा था? ये था liver, ये था pancreas. Got it? Liver और pancreas. Both are the glands which are very important in the process of digestion. ये इतना लंबा मैंने स्पेस कब बनाया? I always say space of things so that it will be easier for you. अब लिवर में एक प्रोडक्शन होता है that is of bile. So this question comes a lot. Liver produces what? It produces bile. Liver produces bile. What is this? Bile is a greenish colored liquid, are made it green, which is alkaline in nature. Alkaline in nature, towards the pH basic side में होगा. This bile is produced in the liver. It goes in the gallbladder and it is stored there. Till it is not needed, it is stored in the gallbladder. This is the gallbladder. तो gallbladder का क्या काम होता है? Storage of bile. Bile produce का होता है liver के अंदर. And फिर वो कहाँ आता है? When it is required. For example, stomach में protein digest हो गया है, carbohydrate digest हो गया, लेकिन हमारे डाइट का एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फैट, है ना? तो वो फैट आ रहा है. अब वो फैट यहाँ पे आया, यहां से मान लो फूड हैज कम. दिस इज द फूड विच इज कमिंग हियर, पार्शियली डाइजेस्टेड. दिस फूड ऑब्वियसली इज एसिडिक इन नेचर. होगा ना एसिडिक, बिकॉज स्टमक में तो एसिडिक मीडियम था. अब इसको थोड़ा सा बेसिक या अल्कलाइन करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है दे वर्क प्रॉपरली इन अ बेसिक मीडियम. तो एक तो बाइल, जैसे ही फूड यहाँ आएगा बाइल यहां से स्टार्ट होगा, तब तक स्टोर रहेगा और इट कम्स हियर एंड इट मिक्सेस विद दिस फूड. एंड अलोंग विद बाइल देयर इज अ जूस कमिंग फ्रॉम द पैंक्रियास व्हिच इज कॉल्ड द पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक juice. Pancreatic juice also comes from the pancreas where to the duodenum. So it is mixed here. The food we have eaten, bile and pancreatic juice. So bile and bile भी यहाँ से आता है, pancreatic juice भी साथ में इधर से आता है, और इस फूड के साथ जो हमने खाया उसके साथ मिक्स हो जाता है. ठीक है? That happens in the duodenum. और duodenum, इस bile का एक रोल तो हो गया, stores, gallbladder stores bile. One, bile provides alkaline medium. For enzymes to work properly. Second, it emulsifies fat. Now what do we mean by emulsify? Bile ने alkaline medium तो कर दिया, ठीक है. क्यों कर दिया? ताकि अभी जो मैं बताऊंगी आपको पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स है वो प्रॉपरली बेसिक मीडियम में वर्क करती है. ठीक है? अब एक और काम इसका करना पड़ता है कि जैसे हमने फूड खाया तो देखो प्रोटीन तो पार्शियली डाइजेस्ट हो गया था, इवन कार्बोहाइड्रेट्स पार्शियली डाइजेस्ट हो गया था, लेकिन अपना फैट तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ था. सो दैट नीड्स टू बी डाइजेस्टेड अ लिटिल बिट इन द फिजिकल फॉर्म. तो फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, they are broken down into smaller pieces or into smaller fat globules with the help of bile. तो emulsify करना मतलब breaking large fat droplets of globules into smaller parts or smaller pieces. That is called emulsification. It is done by bile. Emulsification, you write it down. Breaking larger fat molecules or globules or droplets into smaller pieces, that is done by bile. अब वो smaller हो गए तो एंजाइम इजीली ब्रेक कर पाएगी उसको और फर्दर केमिकली. ठीक है ना? तो emulsification of fats is done by the help of bile or by bile, and it also provides alkaline medium. तो दो रोल है, आपको ये सब याद करने हैं because all are asked. ठीक है? अब let's come to pancreatic juice. It secretes 3 enzymes. एक तो है trypsin. अब trypsin, remember I said pepsin, iron प्रोटीन के पीछे भी है, trypsin के पीछे भी है. तो trypsin किसको डाइजेस्ट करेगी? प्रोटीन को.
सेकेंड होती है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और आपको पता है अमाइलेज तो किसको डाइजेस्ट कर रही थी, कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। और थर्ड लास्ट एंजाइम जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है दैट इज लाइपेज। ट्रिप्सिन विल वर्क ऑन प्रोटीन, अमाइलेज विल वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, पैनक्रियाटिक होती है दोनों, और पैनक्रियाटिक लाइपेज दे विल वर्क ऑन, अब कौन सा रह गया, फैट्स। लाइपेज मतलब लिपिड्स को ब्रेक करने वाली, लिपिड्स मतलब फैट्स, तो लिपिड्स को ब्रेक करने वाली लाइपेज वो कहां सिक्रीट होती है, पहली बार पैनक्रियास में, ठीक है। दैट मच इज क्लियर। ये पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन को फर्दर डाइजेस्ट कर देगी, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो माल्टोज था उसको फर्दर ग्लूकोज में डाइजेस्ट करेगी, बनाएगी, और लाइपेज विल ब्रेक द इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड मतलब पहले लार्ज टुकड़े थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए विद द हेल्प ऑफ बाइल, एंड नाउ लाइपेज विल वर्क। तो लाइपेज का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ बाइल। तो ये वर्क होता है नाउ हियर इन द स्मॉल, ये सब मिक्स होके फिर आगे निकल जाता है, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन चलता रहता है, ठीक है ना। सो दैट इज क्लियर। ट्रिप्सिन विल डाइजेस्ट प्रोटीन फर्दर। नाउ पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स थे टू अमाइनो एसिड्स। Amylase will digest the maltose into glucose, और carbohydrates कह सकते हो आप इसको, और lipase digests emulsified fat। समझ में आ रहा है? तो सीधा फैट या लिपिड्स भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पे प्रोटीन की जगह अगर आप पेप्टोन पेप्टाइड लिखो तब भी ठीक है, बट ज्यादातर एनसीईआरटी आंसर्स में प्रोटीन टू अमाइनो एसिड्स कर सकते हो, टू अमाइनो एसिड्स। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे ये चलते हुए काफी कुछ डाइजेशन होता रहता है, ठीक है। और एंड ऑफ यहाँ पे जो इलियम होता है, यहाँ पे एक जूस सिक्रीट होता है, इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस जिसका नाम है Succus entericus. Succus entericus is the name of the intestinal juice which is secreted in the small intestine, maximum in the ileum. और ये अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत काफी कुछ फूड डाइजेस्ट हो गया है, लेकिन मान लो यहाँ पे आते आते some part of food is remaining yet. तो intestinal juice comes in action and it digests all the things which are remaining, carbohydrate, जैसे माल्टोज थोड़ा रह गया तो माल्टेज एंजाइम होगी उसको ब्रेक करेगी। तो बेसिकली वी शुड नो दैट इट ब्रेक्स डाउन ऑल द रिमेनिंग फूड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म्स, जितना पॉसिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू पर्सन्स डाइजेस्टिव सिस्टम एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है इलियम के एंड में, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द इलियम, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और काम आता है, फूड तो यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, पूरे यहाँ पे काफी कुछ अपने सिंपलर उसमें आ गया है, ठीक है, सिंपलर फॉर्म्स में आ गया। तो सिंपलर फॉर्म्स में जब आ गया है तो बेटर रहेगा ना कि यहाँ से अब वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली ऐसे चल के इजेस्ट तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स हैव टू ग्रो समवेयर ताकि वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचे, और वो कहाँ जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। न्यूट्रिएंट्स का ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाने प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अब्सॉर्प्शन। सो अब्सॉर्प्शन अकर्स वेयर, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन दोनों चलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फॉर अब्सॉर्प्शन, बेटर अब्सॉर्प्शन, फॉर बेटर अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोर सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड, राइट। कितना सरफेस एरिया चाहिएगा, मोर सरफेस एरिया। तो मोर सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए फॉर बेटर अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लार्ज सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना बेटर अब्सॉर्प्शन होगा। तो ये क्या होता है, इट इज प्रोवाइडेड बाय, दिस इज प्रोवाइडेड बाय विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर villi and microvilli. What are villi and microvilli? They are finger-like projections in the walls of the
स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस टाइप का था ना, तो इसकी अंदर वाली वॉल जो होगी इस साइड की जो, इट विल बी हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्ट फोल्डेड लाइक दिस, इट विल बी फोल्डेड फ्रॉम इनसाइड लाइक दिस। अगर ऐसे फोल्डेड होगी तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसके अंदर ब्लड कैपिलरी, तो ये इनको क्या बोलते हैं, विलाई। और अगर इस विलाई के ऊपर और फोल्डिंग है छोटी छोटी तो उसको माइक्रोविलाई बोलेंगे। तो दिस माइक्रोविलाई एंड विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस on the inner side of the small intestine for increasing the surface area for a better absorption of nutrients. तो ये क्वेश्चन भी आता है, what is the role of villi? Villi are finger-like projections and their role is to increase surface area for better absorption of nutrients. देखो कैसे increase करेंगे, मान लो यहां से absorb हो रहा है, जैसे मान लो this was the एरिया है ना, मान इतना सा एरिया, तो यहां दिस वाज द स्मॉल इंटेस्टाइन की एक कुछ भी ले लो, यहां से अब्सॉर्प्शन हो रहा है, इतना अब्सॉर्प्शन होगा, मान लो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है। अब ज्यादा इसको इंक्रीज करने के लिए इतने से एरिया में अगर मैं इसको यू फोल्ड कर दूं तो यहां से भी होगा, यहां से भी, पूरी साइड से होगा। यूं अगर ये इसी एरिया में इसे फोल्ड कर दे तो इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया, ज्यादा यहां से सब तरह से एब्जॉर्प्शन होगा, तो दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर इनके। जैसे हमने ये साइज है, इस एरिया में इसको हम ऐसे रख सकते हैं, एक थ्रेड अगर है तो, अगर मुझे इसी एरिया में एक थ्रेड को ज्यादा एकोमोडेट करना है तो मैं उस थ्रेड को ऐसे फोल्ड करके रख दूंगी तो ज्यादा आ जाएगी, देन दैट वे इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया और उससे बेटर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो दैट प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द स्मॉल intestine and digestion of nutrients is completed here. After this enters, food enters the large intestine, there is no digestion at all. In the large intestine only there is absorption of water, क्योंकि यहाँ से आने के बाद एक pulp type होता है food containing lot of water and you cannot afford to lose so much water in digestion process, right? Body requires water a lot. So you cannot afford to lose so much. So उसका absorption with some minerals is taking place in the large intestine, but no absorption of nutrients like glucose, amino acids, etc. is taking place in the large intestine, and no digestion is taking place in the large intestine. Only water जब absorb होता रहता है, वापस blood के अंदर आता रहता है, तो आप जानते हो वो wall थोड़ा थोड़ा hard होता जाता है, and then that pulp when it reaches the rectum, it is stored for some time as fecal matter and then it is digested out of the body. तो ये होता है large intestine में no digestion, no absorption of nutrients, only absorption of water and minerals. तो ये हो गया large intestine का रोल। ठीक है, small intestine का आपको समझ में आ ही गया? Hope that much is clear. First, so just अच्छा, अब यहाँ पे मानो लार्ज, एक चीज और बताती हूँ, जैसे यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में अब्सॉर्प्शन होगा, मान लो ये अपना, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करूं ऐसे विद अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक दिस, तो ब्लड कैपिलरीज यूं होंगी, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते जाएंगे, जैसे ये फूड यहाँ से आ रहा था ना, दिस फूड लाइक दिस विल गेट अब्सॉर्ब इन द ब्लड कैपिलरीज। अमाइनो एसिड, ग्लूकोज तो ब्लड कैपिलरी में ही चले जाते हैं, लेकिन फैट आप जानते हो थोड़ा सा, इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ स्टिकी थिंग्स, सो फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट ब्लड कैपिलरी नहीं होते, फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट देयर आर, आई जस्ट रख दिस, फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट देयर आर लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ के बारे में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन में बताऊंगी। लिम्फ कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टीज। तो फैट का अब्सॉर्प्शन, फैट किस में ब्रेक डाउन होता है? फैट इज फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, प्लस ग्लिसरॉल इसमें डाइजेस्ट होता है, और ये फैटी एसिड्स जो है वो अब्सॉर्ब होते हैं इनटू लिम्फ कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टीज। लिम्फ क्या होता है अपन ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट टिल देन होप दिस मच इज क्लियर टू यू
because you need to know these rules for your NCERT exams. ठीक है, इतना आपको आना चाहिए. अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी है टीथ के बारे में. Sometimes I forgot telling you when I was discussing buccal cavity. Sometimes when you don't take proper care of your teeth में आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में और सब जगह बैक्टीरिया जरूर होते हैं, गुड फ्लोरे भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया विच हेल्प इन डाइजेशन ऑल्सो. लेकिन समटाइम्स व्हेन यू ईट फूड, डोंट टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ एंड डोंट ब्रश देम प्रॉपरली, दिस फूड रिमेन्स विद इन योर टीथ. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मिलता है खाना, और खाना मिलेगा तो ये केमिकल सीक्रीट करेंगे उसको अब्सॉर्ब करने के लिए. ये केमिकल जो है वो आपके दांतों के ऊपर सीक्रीट हो जाता है एंड दे कैन फॉर्म कैविटीज. ठीक है, सो प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ टीथ इज रिक्वायर्ड. ये जो कैविटीज होती है उनको डेंटल कैरीज बोल देते हैं, CARIES. ठीक है, तो दैट इज व्हाई यू नीड टू टेक प्रॉपर केयर of your teeth also. So this was about the digestive system according to NCERT. और भी कुछ आपको अगर ध्यान में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, which you want to ask me, you can always ask me. For a moment I'll wait for you. Just make proper notes. This we have got. इतना आपको स्कूल एग्जाम्स में आना ही चाहिए. जैसे माउथ में कौन सी चीज का डाइजेशन होता है बकल कैविटी में, फिर HCl का रोल क्या है, इसोफेगस में क्या होता है, देन स्टमक में कौन से ग्लैंड्स है, किसका डाइजेशन होता है, फिर बाइल का रोल क्या है, बाइल इज अल्कलाइन इन नेचर. देखो लिवर, बाइल कोई भी डाइजेशन खुद नहीं करती, डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, इट कंटेन्स ओनली बाइल पिगमेंट्स. जो और बाइल इटसेल्फ वो सिर्फ हेल्प करती है लाइपेज एंजाइम को फैट्स को डाइजेस्ट करने में, इमल्सिफाई करती है, ब्रेकअप. जैसे हमारे पास एक लार्ज पत्थर है, उसको ब्रेक करना इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर छोटे छोटे टुकड़े तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे. तो लाइपेज के लिए वही काम करता है बाइल. ठीक है, देन यू शुड नो द रोल ऑफ HCl और पेप्सिन. वही ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज का क्या रोल है, वेयर इज डाइजेशन कंप्लीटेड, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है. ठीक है, अल्टीमेटली फूड इज digested out of the body, and that digestion also is of the undigested part of food. जो हम digest नहीं कर पाए, that food is digested out of the body. So please इसको अच्छी तरह से पढ़िए, और whatever doubts you have you can ask me till we meet in the next lecture. This was your NCERT question. इतना आपको आना चाहिए. So please prepare proper notes. Okay? Thank you.